All right, let's just continue our lecture. We were talking about the cultural sensitivity. We had previously talked about the uh, basics and presenting complaints versus the concerning complaints. And we also talked today about the resistance and the silence and how you can break those kind of scenarios or the situations during the therapeutic plan. We also discussed that how you can use the silence of the patient as a powerful tool during the therapy. All right. Now we are going to talk about the cultural sensitivity. Okay. Let me just move this. Okay. So what is the cultural sensitivity during the clinical interview and why is it so important? Always remember, in every culture, communication styles vary for the situation. Okay. Sometimes in some cultures, it's just all right to behave in certain kind of manners. Okay. For example, अगर आप West community में हो and in case of West community, it's very much common for them if even the therapist is wearing some kind of explosive dress. All right. Why? Because that is their culture, right? तो वहां पर वो चीज इतनी influence नहीं करती. All right. But in case of our culture, it's very much different kind of situation, right? तो यहाँ पर आपको being a practitioner sensitive होना पड़ता है towards the cultural backgrounds as well as sometimes client जो situation face कर रहा है that is because of his cultural aptitudes. All right. आप client के cultural background को भी understand उसके मुताबिक आप उसके लिए strategies को develop करें क्योंकि for example if we talk about the spiritual psychology, right? Spiritual psychology is not very much objectifiable for certain kind of religions around the world. ठीक है हो सकता है वो डिवाइन पावर पे बिलीव ही ना करता हो, राइट? उसके बिलीव्स को उसके यूं समझ लो उसके अपने कल्चरल बैकग्राउंड को बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और द थेरेपिस्ट आपको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी. ठीक है क्योंकि आपने उसके लिए कंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, उसके लिए सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, राइट? तो इन दैट सिचुएशन यू हैव टू बी वेरी वेल अवेयर कि क्लाइंट के लिए क्या चीज अप्रोप्रिएट हो. यू हैव टू बी सजेस्टिव फॉर दैट, राइट? सो cultural sensitivity is important in such kind of scenarios. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्लाइंट आता है फ्रॉम द लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, राइट? अब इस केस में आप उसको पाकिस्तान के टॉप साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स फॉर द कंसल्टेशन और फॉर द रेफरल और फॉर द एडमिशन रेफर नहीं करो, राइट? आपको कैसे पता चले? because you got aware of his situation, you got aware about his culture कि उसके लिए वो appropriate suitable नहीं है, right? So that made you realize कि क्या options उसके लिए feasible है, right? Either उसके लिए medication feasible है, either उसके लिए psych consult over the period of time feasible है, right? तो ये चीजें आपके लिए in that kind of scenario decide करना बहुत जरूरी होता है, right? So why is this kind of situation can be tackled over the period of time? How you can tackle this kind of situation? उसके लिए बहुत important होता है that over the period of time आप feedback लेते हो, तो client के expressions को read out करते हो. ये नहीं है कि आप रोजाना after the session आप उससे पूछो अब आपको कैसा लग रहा है, ठीक है? क्या आपको शुरू की निस्बत अभी बेहतरी महसूस हो रही है? जाहिर है आप रोजाना उससे नहीं पूछो, बट आप जो एक्सरसाइजेस उसको कराओगे, जो वर्कशीट्स आप उसको कराओगे इन केस ऑफ सीबीटी, डीबीटी, आरईबीटी और there are a lot of therapies in the psychology to understand. So in that situation, आपको वो वर्कशीट्स
ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, ये फीडबैक प्रोवाइड करेंगे. All right. When you would understand the expression of the client during that worksheet, आपको वो चीज जो है वो encourage कर, वो आपको information provide कर. So these kind of regular feedback would encourage the openness. All right. और वहां पर आपको even resistance भी identify हो जाती है, आपको डिफरेंट एडजस्टमेंट इश्यूज भी आइडेंटिफाई हो जाते हैं, और उसी से आप अंडरस्टैंड कर पाते हो कि आपको कौन सी अप्रोच लेनी चाहिए, कौन सा थेराप्यूटिक प्लान डेवलप करना चाहिए, इसके लिए इंडिविजुअलाइज्ड प्लान कैसा होना चाहिए. राइट. So we discussed about different kind of case studies today as well, about around different kind of scenarios. हमने उनकी different सिनेरियोज को हमने एनालाइज किया, हमने डिफरेंट सिचुएशंस में रखकर उन सिनेरियोज को देखा. ऑलराइट. और किस तरह से आप उन प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव कर सकते हो. Why we discussed this whole lecture about the silence and the resistance? Why was this important? This was important because during the psych consultation or psychological consultations, your skills for understanding, for the knowledge, for you can say about silence and resistance is very important. ठीक है. अगर आपको सामने वाले की हिंडनेस दिखाई नहीं देगी तो आप उसके लिए इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज कैसे डेवलप करो. राइट. So we discussed today about different kind of effective strategies to overcome the silence and the resistance. इवन हमने उसके लिए भी बात की कि किस तरह से साइलेंस बजाते खुद एक प्रोडक्टिव तरीके से यूज किया जा सकता है. ऑलराइट. और आप किस तरह से क्लाइंट को इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन से एंगेज कर सकते हो और प्रोडक्टिव थेरेप्यूटिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो. ऑलराइट. सो दिस वाज फॉर द डे. In other cases, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, you want to ask something, you want to discuss something regarding these lectures, so this is the official email address of the company, this is the official contact information, and other than that, you can follow me on the YouTube with the name of the Minds Consultants to get all the lectures and all the updates around over the period of time. All right. So now if you have any kind of question, you can ask. Ma'am, I have a question. Okay. So we should be focusing on the presenting complaint first, and then we should be like moving towards the concerning complaints, right? अच्छा, So ये हमें presenting complaint को कितना time देना होगा before we should move on towards the concerning complaints, the underlining complaints? alright. So हमने during the lecture इसी चीज को discuss किया, and I encourage कि आप पहले major concerning complaints के बारे में हमने यही बात की ना. They are sometimes very much hazardous for the patient's safety, right? They can encourage the self-harm in the patient, right? तो पेशेंट की सेल्फ सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए आपको ये चीज डिसाइड करनी होती है, व्हाई योर क्लिनिकल जजमेंट, कि क्या पेशेंट का जो फैक्टर आपको रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई हो रहा है, क्या वो इतना मेजर है कि पहले उस पर काम किया जाए. समटाइम्स आपको पहले उस पर काम करना चाहिए. समटाइम्स आपको लगता है that the problem is with the whole फैमिली का पेरेंटिंग स्टाइल बहुत बड़ा इशू है, जिसपे कि आप पहले काम करने बैठोगे तो आप काम ही करते रह जाओगे. राइट. क्योंकि वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीजें अडॉप्ट हुई, उन पे काम करने में भी उतना ही टाइम लगेगा. ऑलराइट. सो इन दैट सिचुएशन आप क्या करते हो, आप उसके प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स पे काम करते करते अलोंग द साइड उनकी फैमिली के साथ काम करना शुरू करते हो. राइट. सो समटाइम्स ये पेशेंट की कंडीशन पे, उसके रिस्क फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा होता है कि आपको आइदर पहले कंसर्निंग कंप्लेंट्स पे काम करना चाहिए या पहले प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स पे काम करना चाहिए. All right. Sometimes even it's very shocking कि sometimes
क्लाइंट जब आपके पास आता है तो उसका प्रेजेंटिंग कंप्लेन ही बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है, राइट? फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, आपको पता है कि समटाइम्स क्लाइंट जब आपके पास आता है तो वो बहुत हार्मफुल सिचुएशन में होता है, इवन टुवर्ड्स हिमसेल्फ और टुवर्ड्स द अदर्स। सो इन दैट सिचुएशन आपके लिए फिर प्रेजेंटिंग कंप्लेन को डील करना प्रायोरिटी बन जाता है, राइट? सो लाइक मैम, अगर हम प्रेजेंटिंग कंप्लेन से कंसर्निंग कंप्लेन की तरफ पहले जा रहे हैं, लाइक फॉर इंस्टेंस हमारा अदीबा बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है। ऑल राइट, आई एम सॉरी अबाउट इट, यू कैन कंटिन्यू। आप क्या बात कर रहे थे? मैम, आई वाज जस्ट आस्किंग कि अगर हम जो है पहले कंसर्निंग कंप्लेन की टुवर्ड्स पहले जा रहे हैं, लाइक आवर कंसर्निंग कंप्लेन इज, उसकी जो सिवियरिटी वो बहुत ज्यादा है और प्रेजेंटिंग कंप्लेन की सिवियरिटी इतनी ज्यादा नहीं है। सो इफ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द प्रेजेंटिंग concerning complaint first, so should we be telling the client that we're gonna be focusing on the concerning complaint first and then we will try to come towards, or we will focus on the presenting complaint later? देखो, क्या हमारा इस टाइप का फ्लो होना चाहिए? अच्छा, नाउ आई गॉट योर क्वेश्चन। अच्छा, अब प्रैक्टिकली अगर देखा जाए ना, इन द प्रैक्टिकल ग्राउंड्स ऐसा होता है कि क्लाइंट आपके पास जिस प्रॉब्लम को लेके आ रहा है, समटाइम्स उसे लगता है कि इस पे पहले काम होना चाहिए। ऑलराइट, मैं अपने इमोशनल आउटबर्स्ट को कंट्रोल करना चाहता हूँ। ऑलराइट मैम, प्लीज हेल्प मी आउट इन दिस, राइट? तो वहां पे क्या है, वहां आपको ऐसा थेरेपेटिक प्लान डेवलप करना पड़ता है जहां पर आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अलोंग साइड दोनों चीजों पे काम कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा दूं। आपके पास एक पेशेंट आती है, शी इज 13 years old। ये मैं आपको अपनी बजाते खुद अपने पेशेंट की एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। शी इज 13 years old with the case of conversion disorder or neurological functioning disorder, and the episode is psychotic. Alright, अब आपको पता है कन्वर्जन डिसऑर्डर क्या होता है, राइट? कन्वर्जन डिसऑर्डर के केस में अगर उसकी साइकोटिक एपिसोड जारी है एंड शी इज हार्मफुल टुवर्ड्स हरसेल्फ एंड फॉर द अदर्स एज वेल, तो मैं पहले कन्वर्जन डिसऑर्डर पे काम करूंगी या मैं पहले उसकी साइकोसिस पे, उसके हार्मफुल बिहेवियर पे काम करूँ? जहां पर मुझे पता है कि इन वार्ड उस बच्ची ने जो क्लीनिंग एजेंट है वो तक पीने की कोशिश की है, उसने खुद को वॉशरूम में लॉक कर लिया है, ठीक है, वो अपने कपड़े फाड़ रही है, मुझे उस पे काम करना चाहिए या मुझे उसकी कन्वर्जन डिसऑर्डर पे पहले काम करना चाहिए? ऑब्वियसली Yeah, the मुझे, immediate problem. Yeah. एग्जैक्टली राइट, मुझे उसके कंसर्निंग बिहेवियर पे आना पड़ा ना अभी, ताकि मैं उस वक्त उसके उस प्रॉब्लम को रेजोल्यूट कर सकूं, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी हार्मफुल फॉर हर। उसकी सेफ्टी के लिए प्रिकॉशंस लेना मेरी मजबूरी भी बनती है, राइट? तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको सिचुएशन टू सिचुएशन टैकल करना पड़ता है। समटाइम्स क्लाइंट जब आपके पास आता है तो आपको अलोंग साइड काम करना पड़ता है, आपको लॉन्ग टर्म प्लान को सामने रखते हुए शॉर्ट टर्म गोल्स को डेवलप करना पड़ता है। ऑलराइट, ये हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन चीजों पे भी बात करेंगे कि आप किस तरह से शॉर्ट टर्म गोल में आप अपने प्राइमरी कंसर्न्स को रखते हो और लॉन्ग टर्म गोल्स में आप मेजर रिस्क फैक्टर्स पे भी काम करते हैं। आपके लिए ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम कौन सा होता है? जो अम्ब्रेला है, जो मेजर पिक्चर है, जो कॉज है, राइट? तो वो जो कॉज है उस पे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही आप काम करोगे, वो वक्त लेगा, राइट? तो क्या है, ये आपको पेशेंट टू पेशेंट उसके यू समझ लो कि केस को अंडरस्टैंड करते हुए डिसाइड करना पड़ता है दैट व्हाट
you should be concerned about. Either it's about his primitive or presenting complaints, or either it's going to be about his concerning complaints. All right. Sometimes आप उस पे एक और काम भी करते हो जो कि बहुत recommend भी किया जा रहा होता है sometimes. That is the visual analog. आप उनको बताते हैं कि these are the factors, they are contributing in your problem, and these are your presenting complaints जो आप मेरे पास लेकर आए. अब हम इन्हें कंबाइन करके देखते हैं कि आपकी नजर में पहले किस पे काम होना चाहिए. Which are the major issues for you? अगर आपको लगता है क्लाइंट इमोशनली कॉग्निटिवली इतना रैशनल है उस वक्त कि वो आपको रैशनली रिस्पॉन्ड कर सकता है, तो फिर आप उससे पूछ सकते हो, राइट. वो आपको बकायदा फिर 0 to 10 रेटिंग देता है हर कंप्लेन का. आइदर वो प्रेजेंटिंग कंप्लेन है, आइदर वो रिस्पेक्टर्स और कंसर्निंग कंप्लेन्स हैं, और वो रेटिंग आपको हेल्प आउट करती है टू अंडरस्टैंड ऑलराइट मुझे किस पे मैनेजमेंट प्लान किस तरह से लेकर चलना चाहिए, पहले मुझे किस चीज पे काम करना चाहिए. ऑलराइट. तो ये क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करता है. अब आप साइकोसिस के केस में आप पेशेंट से नहीं पूछ सकते, राइट, क्योंकि वो उस वक्त रैशनल ग्राउंड्स पे एक्टिव नहीं है, वो आपको उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, राइट. वहां वो डिसीजन मेकर नहीं. So it's about the situation you are tackling, right? All right. Yeah, ma'am. Thank you so much. All right. Take care of yourself Okay, and Allah remember me in Hafiz. your prayers. Allah Hafiz.